Hello students, welcome to our YouTube channel of Kautilya Academy. I'm your teacher Pooja Watts. Today we are going to start our first grammar topic, and that is really very important. And that is not only a topic, that is a particular thing that you see around you. आप अपने आसपास जब भी देखोगे आपको वो किसी न किसी रूप में नजर आएगी. अब आप पूछेंगे मैम कैसे ग्रामर का टॉपिक और हमें हमारी जिंदगी में कैसे दिखाई देगा. चलिए, I'm giving you some images and you have to identify them. What is this? Can you identify? Yes, it's a tree. You will say, ma'am, it is really very simple. Around us there are so many trees and we can easily identify them. Okay, now what is this? Yeah, it is sun, god of light and energy. Okay, and now what is this? One favorite thing of kids. They love to eat that. What is this? Yes, it's an ice cream. So, around us, whenever you see, जब भी आप देखते हो, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है. नाम है ना? जैसे मैंने इमेज बनाई, कोई भी मैंने इमेज बनाई, मेरे बनाते बनाते ही बिना मेरे नाम लिए या बिना मेरे नाम लिखे आपने आसानी से उसे पहचान लिया ना. आपने आसानी से इसकी पिक्चर को देखते ही पहचान लिया कि मैम इज ड्राइंग अ प्लांट और ट्री. हियर मैम इज गोइंग टू ड्रॉ अ सन एंड इट इज अ यमी आइसक्रीम, इजंट इट. तो आप लोगों ने बिना मेरे नाम लिए पहचान लिया था ना कि ये चीज़ें क्या हैं. तो ये सारी चीज़ें अब आप अपने आसपास देखिए. ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे. आप अपने आसपास देखिए, आप रूम में हैं, ड्राइंग रूम में, जहाँ पर भी आप हैं, आप चारों तरफ नज़र दौड़ाइए. जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नेम है ना. आप चेयर पे बैठे हो, आपके सामने टेबल है, आपके पास मोबाइल है, पेन है, पेंसिल है, फैन है, रूफ, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम. ओके, दैट कैन बी प्रॉपर और नॉट बी प्रॉपर. ठीक है, वो प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर है और किसी ना किसी नाम से हम उसे ज़रूर बुलाते हैं. और यही नाम जो है हमारे कहलाते हैं क्या? नाउन. यस, दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. वो नेमिंग वर्ड्स जो है नाउन कहलाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे राम, या किसी जानवर का नाम हो, या पक्षी का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल डॉग और हैन, या किसी वस्तु का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल चेयर, या हमारी फीलिंग्स का नाम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैड. ओके, सो दीज ऑल आर आवर nouns. Now we will revise the definition again, the proper definition of noun. So now you know which is our today's topic. Yes, it's noun, and in Hindi you can call it संज्ञा. So what is noun? A noun is the name of a person, place, animal, or any emotion. Emotions. These all are called noun. ये सभी जो है noun कहलाते हैं. Okay, so repeat again. A noun is the name of a person, place, animal or any emotions. These all are noun. Okay, now we will talk about the type of the noun. Noun. Here are two types of noun. First is countable
and the another is uncountable. First we will clarify the meaning of countable and uncountable कि countable और uncountable क्या होता है ना. Countable, count, it has been made of two words, count and it is made of uncount, and the second word is able. Which word? Yes, that is able. You know very well the meaning of count. कहते हैं ना काउंट करके बताओ, यानी कि the things which we can count and able means योग्य. The things which we are able to count are called countable noun, and the things which we are unable to count are uncountable nouns. In countable, we can count the person, the place, the animal, whatever is given. Okay, and in uncountable, we are not able to count. So these are two types of noun, and further we will discuss their kinds also. Okay, first we will write their names and then we will do them in brief. Okay, so the first is incountable. Okay, countable and uncountable are two types, and now we will discuss their three kinds. The first is proper, second is common, and third is collective. Now we will write the uncountables, and uncountables are two. First is material and second is abstract. Okay, so revise again. Noun has two types. First is countable and second is uncountable. In countable we have three further kinds. These are proper, common and collective. In uncountable we have material and abstract. Now we will do them in brief. Okay, we will start with our countable noun. Yes, we will start with our countable noun. Countable, in which we are able to count. Uncountable noun. And the very first uncountable noun is our proper noun. Proper, बस इतनी सी पिक्चर अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि जब हम किसी चीज को लेकर श्योर होते हैं, कोई डाउट नहीं होता कि यस which person, which place, which thing, that is called our proper noun. Okay, so what will be the definition for proper noun? Yes, the noun which denotes the noun which denotes a proper person, a proper person, place or thing. वो नाउन जो हमें किसी प्रॉपर यानी एग्जैक्ट के बारे में बताती है, जहाँ जिसको लेकर हमारे मन में कोई डाउट ही नहीं होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि ना मान लीजिए आप बीमार हैं और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ दैट यू शुड गो टू अ डॉक्टर. आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अब आप बोलोगे मैम कौन सा डॉक्टर. अगर मैं उसका नाम लेती हूँ, सपोज कीजिए मैंने नाम लिया कि आप डॉक्टर शर्मा के पास जाइए, डॉक्टर आनंद शर्मा के पास जाइए, तो अब आपको एक पर्टिकुलर नेम मिल गया. लेकिन जब मैंने सिर्फ डॉक्टर कहा, यू वर कंफ्यूज दैट विच डॉक्टर मैम इज टॉकिंग अबाउट. Okay, so when we are taking a particular name, that is our proper noun. Okay, so proper noun में हम क्या क्या लेते हैं? Proper noun में हम लेते हैं proper person. Proper person. उसके बाद सेकंड पे हम जो है proper places की भी बात करते हैं. Proper प्लेस, और हम जो है प्रॉपर थिंग्स की भी बात करते हैं. प्रॉपर थिंग्स. ओके, नाउ वी हैव
to discuss the examples also, which are the proper names, which are the proper place and which are the proper things. Okay, proper person. Proper person, अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप जाइए किसके पास, डॉक्टर शर्मा के पास या डॉक्टर आनंद शर्मा के पास, या एग्जाम्पल लीजिए जैसे आज जो है किसका मंदिर बन रहा है, श्री राम जी का, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर नेम. ओके, आई एम योर टीचर, माई नेम इज पूजा, इट इज ऑल्सो प्रॉपर नेम. ओके, यू गाइज आर माई स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए नेहा, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर नेम, या निकिता, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नेम. उसके अलावा बहुत सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपका खुद का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, ये सभी नाम, यानी जब किसी व्यक्ति का कोई प्रॉपर हम नेम की बात कर रहे होते हैं, दीज ऑल नेम्स आर प्रॉपर. ओके, दीज ऑल नेम्स आर प्रॉपर. नाउ वी विल टॉक अबाउट विच प्रॉपर प्लेस. ओके, विच आर द प्रॉपर प्लेसेस. अब प्रॉपर प्लेसेस की बात अगर हम करें, अब मैं कहूँ कि चलो ना हम घूमने चलते हैं, मार्केट चलते हैं. अब मार्केट भी कई जगह होते हैं, आपको पता है. आप मानेसर की बात लेके चलिए, एक जो मेन मार्केट भी है बाज़ार में है, एक कासिम रोड की तरफ भी है, एक मंडी की तरफ भी है, तो काफ़ी सारे प्लेसेस हो जाते हैं. या हो सकता है मैं कहीं बाहर गुरुग्राम में जाने की बात कर रही हूँ, या फिर मैं दिल्ली में बहुत सारी मार्केट है, सरोजनी मार्केट है या चांदनी चौक है, बहुत सारी जगह है ना. तो मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, आर नॉट श्योर. ओके, बट अगर मैं आपको सीधा कहूँ कि हमें प्रॉपर प्लेस जाना है, प्रॉपर प्लेस मान लीजिए हमने कहा कि वी हैव टू गो टू आगरा और टू दिल्ली. ओके, या अपने आप स्कूल का नाम ले सकते हो, या इसमें आप किसी भी प्लेस का नाम, ठीक है, किसी भी प्रॉपर प्लेस का नाम आप इसमें ले सकते हो. ठीक है, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इवन द नेम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर प्लेस. ओके, या बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, प्लेसेस हैं, या किसी मान लीजिए आप किसी मॉल जा रहे हो, ठीक है, सपोज यू आर गोइंग टू विशाल, ओके, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नेम. ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर थिंग्स. प्रॉपर थिंग्स में क्या आ जाती है, जैसे हमारी सबसे हॉली बुक दैट इज भागवत गीता, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर थिंग. ओके, एंड द अनदर इज बाइबल, कुरान. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी प्रॉपर थिंग्स हैं. And the most important thing to tell is that whenever we are writing proper noun, that can be proper person, proper place, proper things, always the first letter will be capital. It doesn't matter it is in the middle of the sentence, it is in the beginning of the sentence, or it is at the end of the sentence. ओके, ये नहीं मायने रखता है कि प्रॉपर नाउन आगे है या सेंटेंस के बीच में है या सेंटेंस के एंड में है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है. मैटर क्या करता है कि जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर किसी का नाम दिया हुआ है, ओके, दैट इज अवर प्रॉपर नाउन एंड दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड विल बी कैपिटल. ओके, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. और एक बात प्रॉपर नाउन को पहचानने के लिए बड़ी ही आसान है, वो मैं आपको पहले कॉमन नाउन समझाऊंगी और फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी कि कहीं अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं दैट विच इज प्रॉपर एंड विच इज कॉमन, दैट वी विल ऑलवेज हेल्प यू इन एवरी वे. ओके, सो फर्स्ट इज अवर प्रॉपर नाउन when we are sure about a particular thing, particular person or particular place, that is our proper noun. Now we will discuss our second, and that is common noun. Okay, common noun की जब हम बात करते हैं, आपको पता है ना, कई बार ऐसी कोई बात होती है तो आप कहते हैं नहीं, कोई आप ड्रेसेस खरीदने गए या कोई आप चीज़ खरीदने गए तो कहते नहीं, तो बड़ी कॉमन सी है, कुछ अलग दिखाओ. कॉमन मतलब जिसकी जैसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है ना. प्रॉपर मतलब अभी पूजा वत्स मैम आपको बहुत सारी तो नहीं मिलेगी, या आपके फादर का नाम मान लीजिए रमेश है, सुरेश है, वैसे नाम वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना. दिल्ली की मैंने बात बोला, बहुत सारे दिल्ली थोड़ी ना इंडिया में, एक ही तो दिल्ली है ना. गीता कहा मैंने, भागवत गीता, ठीक है, वो बुक है, उसकी कॉपीज बहुत सारी हैं, लेकिन गीता जो है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था, यू आर श्योर अबाउट दैट, चाहे उसकी कॉपीज कितनी भी हो, लेकिन वो बुक तो पर्टिकुलर क्या है, उसमें बातें जो वो तो एक ही है ना. सो दैट इज ऑल्सो अवर प्रॉपर नाउन. ओके, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेटा बुक ले, देन यू विल गेट कंफ्यूज, मैम विच बुक. आप सीधा ये तो पूछोगे ना, मैम कौन सी बुक,
तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी बेटा भागवत गीता या बाइबल या कुरान, ओके, या गुरु ग्रंथ साहिब, और योर इंग्लिश ग्रामर, योर हिंदी, whatever. Okay, when we are not sure, okay, the same thing has so many types that you can get confused that which way you have to choose. Okay, तो कॉमन नाउन हमारी क्या होती है, आपको ये हमेशा जो ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन हमारी the noun which denotes a common group. Okay, which is our common noun? The noun which denotes a common group, a common group of person, place or things. Now you will think that ma'am, the same thing was in proper noun also. सोचेंगे ना कि मैम ये सेम चीज़ तो प्रॉपर नाउन में भी थी, क्या क्या थी वहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था, पर्सन, बट दैट वॉज प्रॉपर पर्सन नॉट कॉमन पर्सन. ठीक है, वहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था, प्लेस पढ़ा था, बट दैट वॉज प्रॉपर प्लेस नॉट कॉमन प्लेस. ओके, और वहाँ पे हमने क्या थर्ड क्या पढ़ा था, थिंग्स पढ़ी थी, है ना, बट दैट वॉज प्रॉपर थिंग्स बेटा, नॉट कॉमन थिंग्स. ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस डिफरेंस आई विल टेल यू. फर्स्ट वी विल डू सम एग्जांपल्स फ्रॉम दैट. ओके, वेरी फर्स्ट इज कॉमन पर्सन. अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि बेटा यू शुड गो टू अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अब डॉक्टर के नाम से आपके दिमाग में बहुत सारे जो डॉक्टर घूमेंगे भी, कौन सा डॉक्टर मैम सजेस्ट कर सकती है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पिक्चर. ओके, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉमन. लेकिन जब मैंने नाम लिया, ओके, मैंने कहा डॉक्टर आनंद शर्मा, तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज बन गई एंड दैट इज प्रॉपर पर्सन. ओके, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, आप क्या हो, यू आर स्टूडेंट, स्टूडेंट इज ऑल्सो कॉमन नाउन. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, आप फादर, ब्रदर, मदर, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे कॉमन नाउन है, कॉमन पर्सन है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉमन प्लेस. भाई कॉमन प्लेस, अब मैं कहूँ कि चलो ना आज हम स्कूल चलते हैं, आप पूछो मैम किसके स्कूल, फिर अगर मैं कहती हूँ कि वी शुड गो टू कौटिल्य अकेडमी, देन यू विल गेट श्योर दैट ओके मैम टू माई स्कूल, ओके वी शुड गो, है ना. लेकिन जब मैंने सिर्फ स्कूल कहा आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं मैम कौन से स्कूल जाने की बात कर रही है ना. या मैंने अगर हॉस्पिटल कहा, या अगर मैंने सिटी कहा कि चलो आज सिटी चलते हैं, आप पूछो मैम कौन सी सिटी, गुरुग्राम सिटी, फरीदाबाद सिटी, या दिल्ली में किसी सिटी में जाना है ना. अगर मैं नाम लेती हूँ दैट विल बिकम प्रॉपर प्लेस, बट इफ आई एम नॉट टेकिंग द नेम, ओके, स्कूल, सिटी, हॉस्पिटल, ओके, या टेम्पल, विच टेम्पल वी डोंट नो. Okay, so these all are our common places. Now we will discuss the common thing. जैसे मैंने आपको वही सेम एग्जांपल दिया था, मैंने आपको कहा कि क्या निकालो, बुक निकालो, बट which book you don't know. Then when I tell you to get out गीता, ओके, कि भाई गीता की बुक जो है वो बाहर निकालो, ठीक है, उसको आपके जो बैग में है या जहाँ पे भी है, भागवत गीता को निकालो, तो भागवत गीता दैट इज अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर थिंग. ओके, बट बुक, कौन से बुक, यू आर नॉट श्योर, देयर आर सो मैनी बुक्स. ठीक है, पेन, यू आर नॉट श्योर. ओके, दीज आर बट प्रॉपर कॉमन थिंग्स. ओके, दीज ऑल आर आवर कॉमन थिंग्स, बुक, पेन, चेयर, दीज ऑल आर आवर common things. Okay, now you will think that ma'am, what is the way to identify which is proper and which is common, isn't it? Okay, our mind is like a camera बेटा. हमारा जो माइंड है ना वो एक कैमरे की तरह काम करता है. ओके, अगर आप उसमें एक पर्टिकुलर, या आपके साथ गूगल पे आप एक पर्टिकुलर नाम लो, फटाक से क्या आती है, पिक्चर्स हो जाती है, बहुत सारी आ जाती है ना, है ना. अगर आप उसमें डालोगे, अगर आपने उसमें डाला एनिमल्स, ठीक है, या आपने डाला कैट, बहुत सारी कैट आ जाएंगी. आपने डाला डॉग, बहुत तरीके के डॉग उसमें दिखाएगा ना, ठीक है. लेकिन अगर आप उसमें, ठीक है, आपने बॉयज़ डाला, पता नहीं कैसे कैसे बॉयज़ की इमेजेस निकल कर आएंगी ना. लेकिन अगर आप उसमें एक पर्टिकुलर नाम, सपोज करो आपने नाम डाला सपोज कीजिए किसी हीरो का, एक्टर का, कोई आपका एक्टर पसंद है, ठीक है, आपको मान लीजिए पसंद है शाहरुख खान,
आप नीचे से अब शाहरुख खान सोचोगे, आपके दिमाग में फटा जल्दी से एक पिक्चर आएगी, जैसे क्लिक करते हैं ना वैसे एक पिक्चर आ जाएगी शाहरुख खान की प्रॉपर, ठीक है। या मान लीजिए आपको शाहरुख खान पसंद नहीं है, ठीक है, आप किसी लीडर की बात कर रहे हो, या भाई अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वही हीरो हैं, ठीक है। तो अगर मैं उनका नाम लूँ कि शहीद भगत सिंह, तो जल्दी से आपके दिमाग में सिर पे एक हैट और छोटे से मूछे और ऐसे वो ताव लगा, तो वो एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी, है ना। उसके अलावा अगर मैं कहूँ चंद्रशेखर आज़ाद, तो एक हेल्दी सा पर्सन और इस तरीके से गन लिए हुए आपको जो है एक अलग ही इमेज बनकर आपकी आंखों के सामने आ जाती है ना। अगर मैं नाम लूँ सुभाष चंद्र बोस, तो आपको नेताजी का जो है आर्मी वाली वर्दी में ऐसी कैप पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, आपके दिमाग में एकदम से एक तस्वीर पर्टिकुलर बन जाती है ना। ऐसे अगर मैं कहूँ मंदिर, तो आपके दिमाग में बहुत सारे मंदिर घूमेंगे, कहीं अपना मानेसर वाला, कहीं और कोई आपको गोल्डन टेम्पल पसंद है या कोई अक्षरधाम पसंद है, आप बहुत सारे मंदिर घूमेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर मंदिर का नाम लूँ, सपोज करो मैंने नारायण साध मंदिर ही बोल दिया, तो जल्दी से आपके दिमाग में वही पिक्चर आएगी और कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओनली वन पिक्चर विल बी देयर इन योर माइंड एंड बिफोर योर आइज, एंड दैट इज ऑल्सो अवर प्रॉपर नाउन। ओके, सो ओनली डिफरेंस इज दैट बेटा। अगर मैंने कहा ताजमहल, ठीक है, ताजमहल एकदम से आपकी आंखों के आगे आएगा ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ एप्पल, अब कितने सारे एप्पल्स आपकी आंखों के आगे आएंगे, क्या कोई एक एप्पल आएगा? नहीं ना। तो ये एप्पल क्या, बहुत सारे एप्पल्स हैं, दीज आर कॉमन। ओके, और अगर एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम अगर आ जाता है, रेड फोर्ट, ओके, या आप जैसे कुतुब मीनार, ओके, या फिर ताजमहल या मीनाक्षी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, तो जब एक पर्टिकुलर पिक्चर हमारे माइंड में कैमरे की तरह क्लिक हो जाती है, दैट इज आवर proper nouns. Okay, but when we have so many images of that type, that is our common noun. Okay, so never get confused between the two, क्योंकि कई बार बेटा आपके एग्जाम्स में ये आता है चूज करना कि इसमें कौन सी प्रॉपर और कौन सी कॉमन है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर थर्ड फ्रॉम द काउंटेबल, एंड दैट इज कलेक्टिव नाउन। इस नाउन में क्या है, बाकी की जो नाउन्स है वो आपके समझने वाली है, ठीक है। जैसे आपने समझा कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन, बट कलेक्टिव नाउन ना बेटा, इट इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ओके, इट इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, एंड यू हैव टू जस्ट लर्न दैम, नो वे टू एस्केप फ्रॉम दैम। ओके, आपको ये बेटा एज इट इज़ जैसे दी हुई होती है ना, आपको लर्न करनी होती है। इनकी काफ़ी बड़ी एक लिस्ट होती है जो कि आपको आगे PDF में जो है अवेलेबल कराई जाएगी, एंड दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन एवरी एग्जाम्स यू विल गेट दैम इन 2 or 3 मार्क्स। ओके, आपको 2 या 3 मार्क्स की या आपको कलेक्टिव जो नाउन्स होती है वो ज़रूर मिलती है। ओके, सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? we will discuss first is its definition. Okay, what is collective noun? The noun which denotes a group of person. Okay, the noun which denotes a group of person or creatures and things. ओके, जो संख्या हमें किसी व्यक्तियों के ग्रुप के बारे में, क्रिएचर्स आपको पता है बेटा, सारे प्राणी जितने भी होते हैं, ठीक है, और ये कीट पतंगे आ गए या बर्ड्स आ गया या एनिमल्स आ गए, ये सभी हमारे क्रिएचर्स होते हैं। और थिंग्स, वस्तुएं जो इनके ग्रुप को डिनोट करती है, दैट इज आवर कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो किसी भी चीज़ के ग्रुप को मेंशन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ग्रुप ऑफ पर्सन, देन द सेकंड विल बी ग्रुप ऑफ creatures, and the third will be group of things. I'm just giving 2 or 3 examples, but further you have learned a lot of collective nouns. Okay, as I told you beta, these are really very very important. So first we will discuss group of person. अब group of person क्या होता है? जैसे आप खेलते हो, गेम खेलते हो, तो आप क्या बनाते हो बताइए? जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो आप क्या बनाते हो? आप क्या बनाते हो? आ टीम ऑफ प्लेयर्स, चाहे वो कोई भी गेम हो, है ना। उसके अलावा आप क्लास में रहते हो, क्या होती है आपकी? आ क्लास
ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्रू, ठीक है, क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स क्या होते हैं? जो नाविक हमारे होते हैं, ठीक है, समुद्र में सेल्स करते हैं, उनकी टीम को क्या कहा जाता है? उनकी टीम को क्रू कहा जाता है। ऐसे ही बहुत, ठीक है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, लेकिन यहाँ पर मैं सभी को मेंशन नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। एंड फर्दर यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर बुक एंड देन फ्रॉम द नोट्स विच यू विल गेट फ्रॉम अकेडमी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स में क्या क्या आएगा? जैसे अ herd of cattle, a herd of cattle। कभी कैटल्स नहीं लिखना बेटा, कैटल अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल, जो ये होते हैं ना, गड़रिए चराने ले जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ, उसे क्या कहा जाता है? हर्ड ऑफ कैटल कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अ स्वार्म ऑफ एंट्स। ऐसे बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स के भी ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे ग्रुप ऑफ थिंग्स में क्या आ जाएगा? अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, या उसके अलावा अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, या अ बंच ऑफ कीज। इस तरीके की जितनी भी हमारे चीज़ों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? द कलेक्शन ऑफ पर्सन, क्रिएचर्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नाउ आफ्टर काउंटेबल नाउन वी विल डिस्कस आवर सेकंड, दैट इज अनकाउंटेबल। When we are unable to count anything, okay, जब हम असमर्थ होते हैं किसी चीज़ को काउंट करने में, that is our uncountable noun, okay, and the first in is material noun. What is material? कहते नहीं, कौन से मटेरियल की चीज़ बनी है? भाई ये चेयर कौन से मटेरियल की बनी है? यानी पदार्थ, धातु। ठीक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, किस पदार्थ की बनी हुई है? जब हम इस बात को डिस्कस करते हैं, दैट इज आवर मटेरियल नाउन। ओके, एंड द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन इज व्हाट? द नाउन विच डिनोट्स द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। ओके, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, आप चेयर पे बैठे हो, लेकिन चेयर किस चीज़ की बनी है? दैट इज मेड ऑफ वुड और आयरन। ओके, वो किस चीज़ की बनी हुई है? देखिए, चेयर इज अ कॉमन नाउन क्योंकि वो वस्तु है, बन चुकी है, लेकिन वो किस मटेरियल की बनी है? दैट इज द मटेरियल इज वुड और आयरन। ओके, या मान लीजिए मेरी रिंग पहनी हुई है, ठीक है, रिंग तो बहुत सारी होती है, वैसे गोल्ड भी बहुत सारा होता है, लेकिन रिंग को तो आप काउंट कर सकते हो ना। भाई मैम ने 1 रिंग पहनी है, 2 पहनी है, 4 पहनी है, मेरी मम्मा के पास 10 रिंग्स हैं, यू कैन काउंट दैम। लेकिन रिंग किस चीज़ की बनी हुई है? रिंग जो है गोल्ड की बनी हुई है। यू कांट काउंट गोल्ड, यू कैन मेजर, आप उसको वेट तो कर सकते हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो बेटा। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल। ओके, तो गोल्ड हो गया, उसके अलावा ऑयल हो गया, घी, वाटर, और जितने भी मटेरियल्स इसमें हैं वो सारी हमारी क्या आती हैं, और लिक्विड्स वगैरह, ये सभी हमारे जो है मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी आपको ये आता है कि आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, माय रिंग इज मेड ऑफ गॉड। ओके, अब मान लीजिए इसमें जो है आपको डिस्क्राइब करना आ जाए कि इसमें से कौन सी नाउन है। ठीक है, अब आप नाउन तो आप ऐसा आन सकते हो, फिर रिंग भी है और गोल्ड भी है, लेकिन विच काइंड ऑफ रिंग इज नाउन एंड विच इज अ काइंड ऑफ गॉड। ओके, इन दोनों का काइंड अब आपको बताना है। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात अपने दिमाग में रखो, ज़्यादा ग्रामर के रूल्स में मत पढ़ो। रिंग क्या है? रिंग को आप काउंट कर सकते हो ना, कर सकते हो ना भाई, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, यू कैन काउंट देम। लेकिन सोने को कैसे काउंट करोगे?
यू कांट काउंट इट बेटा। सो दैट्स वाई इट इज़। और रिंग भाई बहुत सारी होती है, कोई पर्टिकुलर रिंग की तो बात नहीं हो रही, इसलिए ये हमारी कॉमन नाउन हो जाएगी। और सोना हमारा ये पदार्थ है, ये मटेरियल है, दैट इज आवर मटेरियल नाउन। सो इट इज़ द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई। कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई चेयर, मैम चेयर तो लकड़ी की होती है, लकड़ी तो धातु है, तो ये क्यों नहीं है। नहीं बेटा, आप चेयर को काउंट कर सकते हो कि कितनी चेयर्स आपके घर में है, ठीक है, लेकिन उस प्लास्टिक को कैसे काउंट करोगे, नहीं कर सकते ना। सो दैट्स वाई प्लास्टिक, वुड, आयरन, दीज ऑल आर अवर मटेरियल। एंड चेयर, टेबल, रिंग, ओके, नोजपिन, हेयर, you can say earrings, these all are our common noun. Okay, and now we will discuss the last, okay, and that is our abstract noun. Abstract noun. Abstract emotions. अब एक देखो, आप जितने भी नाउन है ना सबको देख सकते हो, सबको टच कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना ये किससे रिलेटेड होता है पता है? ये आपके, यस, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट आई थिंक बच्चे पहचान तो लेंगे ही कि ये जो हमारा हार्ट है ना ये इससे रिलेटेड होता है। ओके, हमारे हार्ट में जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, ये अब हार्ट को आप नहीं देख सकते ना ऐसे तो सामने, भाई वो तो फिर कुछ ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ेगा, लेकिन हार्ट को तो आप देख भी लोगे। लेकिन जो हार्ट के अंदर हमारी फीलिंग्स हैं, आप खुश हो, आप दुखी हो, ठीक है, आप किसी को प्यार करते हो, आप किसी से नफरत करते हो, उन फीलिंग्स को कैसे देख सकते हो? उन फीलिंग्स को आप नहीं देख सकते बेटा। यू आर अनेबल टू सी द फीलिंग्स। ओके, सो दीज फीलिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो जो हमारे हार्ट में फीलिंग्स होती हैं, दोज आर अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वी कांट सी दैम, वी कांट टच दैम। ओके बेटा, हम उनको ना ही देख सकते ना ही उनको टच कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज abstract noun? The noun which denotes quality, condition, and emotion. These all are our abstract noun. Okay, अब बताइए आप भाई कि आप में जो है आप ऑनेस्टी है, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप बताइए कि आप मेरी ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं, आप उसे सिर्फ फील कर सकते हैं बेटा। यू कांट टच माई ऑनेस्टी, यू कांट टच it, you can't see it, you can just feel that. Okay, so these feelings are our abstract noun. Here are some more examples. Wisdom, बुद्धिमत्ता, क्या आप देख सकते हो मेरी बुद्धिमत्ता कितनी है? You can't do that. Okay, humanity, किसी में कितनी मानवता जिंदा है हम नहीं देख सकते। कौन फ्रेंड की आड़ में हमारे साथ धोखेबाजी कर जाता है, हमारा फ़ायदा उठाया जाता है। वी कांट सी प्राइड, वी कांट सी ब्रेवरी, कोई कितना बहादुर है शक्ल से पता नहीं चलता। कई लोग दिखने में हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बट दे आर कॉवर्ड, वो डरपोक होते हैं, है ना। चाइल्डहुड, दीज ऑल आर अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, वी कांट सी द बचपना क्या होता है? बचपन तो देखते हैं भाई, हम छोटे थे बड़े थे, लेकिन वो बचपने वाली जो हमारी हरकतें होती हैं वो कैसी होती है, क्या होती हैं? आप उनको जो है हमारे अंदर कितना बचपना भरा है। कई लोग आप देखते ना बड़े होने के बाद भी उनमें बच्चों जैसी हरकतें होती हैं, ठीक है, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कांट सी दैम, वी कांट टच दैम, एंड इट इज़ अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इट इज़ रियली अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट यू हैव टू कंसंट्रेट इट। अगर आपने कंसंट्रेट नहीं किया यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपको नाउन की परिभाषा आपको पता है, बिकॉज फ्रॉम योर फर्स्ट क्लास में जस्ट स्टार्ट टू रीड। ओके, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। आप ये पढ़ना शुरू कर देते हो, आपको रट जाता है, लेकिन ओनली क्रैमिंग इज नॉट गुड बेटा, ठीक है। सिर्फ रटना इज नॉट एनफ फॉर यू, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आपको वो टॉपिक समझ आ जाता है, सो इन एवरी सिचुएशन यू विल बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द नाउन।
ओके सो प्रॉपर व्हेन वी आर श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर पिक्चर, ओके, जिसमें कैमरे की तरह एकदम से क्लिक होकर हमारी पिक्चर सामने आती है, दैट इज प्रॉपर नाउन। कॉमन, जब उसकी जैसी बहुत सारी चीजें होती है, दैट इज कॉमन नाउन। ओके, मटेरियल, मटेरियल जो पदार्थ होते हैं, वस्तु होती है, ठीक है। कलेक्टिव, कलेक्शन होता है चीज़ों का जो हमें ग्रुप के बारे में शो करता है। ओके, उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट जो हमारी फीलिंग्स होती है, वी कांट टच देम, वी कांट सी देम। ओके, सो दिस इज द आवर टॉपिक ऑफ नाउन। You have to learn it, you have to make notes of it, and soon you will get the PDF of collective nouns also, and you have to learn them also. Okay, till then, bye bye. Wait for our next video. We will meet in that. Thank you and have a nice day.